हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू एयर प्रवाज एकेडमी। आज के इस लेक्चर में जो कि हम चला रहे सीरीज़ अभी नो योर जम्मू एंड कश्मीर, इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 होगा आज। और इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स ऑफ जे.एंड.के। ऑब्वियसली इसमें एग्रीकल्चर में सब कुछ आएगा आपका, ठीक है। कुछ स्कीम्स भी इसमें हैं, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, किस तरह का कौन से क्रॉप में सूटेबल होता है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड हियर एंड एज वेल एज क्रॉप। सो डू वॉच दिस होल लेक्चर for more information about this particular topic, and many a times questions are asked directly about this from this section of your general knowledge. So let's start today's lecture. One request would be there to please one only request would be that do subscribe to this channel before watching the whole video, and if you want the PDF you can get the PDF on Telegram, that is in the description of the video. Okay, now let's move forward. Before this I have already recorded 4 lectures, and those lectures are mostly first 3 lectures are historical based, and then we recorded yesterday that was about the okay, yesterday what did I discuss, I'm not getting it right now, but do watch those videos before watching this video. Okay, so let's move to the question number 1. Here is your question number 1. All those guys who have watched the videos, earlier videos, they know that we have this set of questions which includes all types of questions, your statement based questions, assertion reason type questions, and match the following type of questions with that as well, the simple one liner type of questions. So let's start. The question number 1 is your statement based questions. Consider the following statements regarding the agrarian economy of Jammu and Kashmir. So what are the statements? Agriculture and allied sectors contribute nearly 50% to the total UT's GDP. Okay, agriculture and allied sectors. The net sown area NSA of J&K is around 46% of the reported area. The J&K is predominantly multi-cropped with highly assured means of irrigation across both divisions. So when you look at this question, you have to find out which statements are correct. You have to find out the correct statements. So if I talk about the statement 1, yes, agriculture and allied sectors contribute 50%, nearly 50% to the UT GDP. This is correct. Okay, GDP we all know it's gross domestic product. Okay, सो ये यहाँ पे बात हो रही है लेकिन स्टेट की जीडीपी की. डोंट कंफ्यूज इट विद द जीडीपी ऑफ द कंट्री. दिस इज ऑन टॉकिंग अबाउट द स्टेट. नेट सोन एरिया क्या होता है कि जो भी हमारे पास एरिया अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, उसका हम कितना % यूज़ करते हैं ईयरली फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया, जिसपे हमने सो किया है क्रॉप को ही. ठीक है, so that is called net sown area. Net sown area of J&K is around 46%. This is not correct. This is the national average. If I talk about the net sown area of national average, that is 46%. National average is 46%, but when you talk about the Jammu and Kashmir, we have below this 46%, that is around 35%. We have net sown area in Jammu and Kashmir, that's around 35% of the reported area that we have we have under agricultural lands. So 2 is not correct. When I look at the options, this is 2, this is not correct. Here is 2 as well, not correct. Here is 2 as well, not correct. So what you get, only option number 1 is correct. Only option number 1 is correct. Now looking at option number 3, J&K is predominantly multi-cropped. We know that J&K is not a multi-crop, but here we have monocropper type of agriculture in which only one crop is ग्रोन विद हाईली एश्योर्ड मीन्स ऑफ इरीगेशन की अगर मैं बात करूं तो J&K में जो 60% हैं वहाँ पे इरीगेशन पहुँचती हैं, बट नॉट इन ऑल एरियाज. दैट मीन 40% से ज़्यादा ICB पॉपुलेशन है, ICB लैंड है जहाँ पे आपको डायरेक्ट इरीगेशन नहीं मिलती है. सो वी आर एक्चुअली रेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर. हमारा जो एग्रीकल्चर है दैट इज मोस्टली डिपेंड्स अपॉन रेन. ठीक है, रेन वाटर. सो इसलिए ये भी आपका जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है. सेकंड इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन. सो रिमेंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी हैड टुडे. Now let's move to the question number 2 and see what question number 2 has. So these are statement type of questions. These are being asked nowadays, so take care of these type of questions. Now match the GI tagged agricultural list 1 with its years of tagging. Okay, so this is a type of question that I can say is difficult because mostly we don't remember when was the GI tag given to a particular type of agricultural product, but at the same time I would say कि in this there is a possibility that this type of question is asked. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो आपको याद रखनी है ना, जो रीसेंट होगा ना, रीसेंट GI टैग्ड
कोई भी क्रॉप होगा, कुछ भी होगा, जो पहले रिसेंट को देखना है। देखो 2024 का हमें बताया है, तो 2024 का कौन सा होगा, रिसेंट हमें कहाँ पे मिला? अगर आपको याद होगा रिसेंट हमें रामबन अनारदाना जो है उसमें मिला था रिसेंट जीआई टैग, जो कि 2024 में मिला था। तो ई के साथ मैं 1 जोड़ सकता हूँ। जब मैं ई के साथ 1 जोड़ रहा हूँ तो मेरे 2 ऑप्शंस यहाँ पे खत्म हो जाएंगे और फिर बचते हैं 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं ऑप्शंस पूरी तरह से आपको दिखा दूँ, ये ऑप्शंस है। तो डी ऑप्शन भी खत्म हो रहा है और बी ऑप्शन भी खत्म हो रहा है। फिर मुझे देखना है कि सैफरन को कब लगा था, क्योंकि सैफरन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। सैफरन को 2020 में जीआई टैग मिला है, तो सैफरन हमारा सी पे है, सी के साथ जुड़ेगा 5, तो सी के साथ जुड़ रहा है 5, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ओके, तो और ही मुश्किल हो गया। तो ये यहाँ पे ई के साथ 1, ई के साथ 1, सी के साथ 5, सी के साथ 5, तो दोनों ऑप्शंस में ओके। नाउ अब देखते हैं जो मुश्क-दुजी राइस हैं, आपको ये भी पता होगा मुश्क-दुजी राइस को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जीआई टैग लिए हुए, तो यहाँ पे 23 में इसको जीआई टैग मिला है, मुश्क-दुजी राइस, मुश्क भुर्जी राइस जो है, तो 2023 में इसको मिला है। तो मैं बी के साथ जोड़ूंगा 3, व्हेन आई कम टू बी के साथ 3, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज हियर। ओके, बाकी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस आर इंपॉर्टेंट, ये जो है सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। जैसे बासमती राइस इंपॉर्टेंट, आपको पता ही पता है। उसके साथ मुश्क भुर्जी राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीरी सैफरन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट agricultural products, or you can say that you need to remember. So do write down these facts, these are very important facts, these are going to be very helpful. Next question, question number 3, assertion and reason type. Saffron in Pampore is cultivated in specially made square beds measuring 1.5 meter with narrow trenches on all sides. Reason, the trenches are necessary to prevent the accumulation of water which is detrimental to the crop. So you have to find out, is assertion true, is reason true, and then if it is true, then is the reason correctly explaining the assertion. So that is the logic here that we apply. Okay, if we talk about the first statement, that's assertion, saffron is obviously cultivated in Pampur, and it is yes, there are these square beds यहाँ पे बनाए जाते हैं, और इसको नैरो ट्रेंचेस भी दिए जाते हैं हर साइड से, ताकि जो पानी है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो जाए, जमा ना हो जाए, क्योंकि ये जो पानी है ये क्रॉप के लिए डेट्रीमेंटल है, खराब कर देगा क्रॉप को। तो ये दोनों ठीक हैं, और रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस इज important to remember as well, because yes, there has been there have been questions like saffron is found in, or saffron is cultivated on करेवा टाइप ऑफ सॉइल, ये आपको पता होना चाहिए सैफरन के बारे में। दूसरा ये कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है, आपका पंपोर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है ना, पंपोर एरिया में, जो कि आपका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। सैफरन यहाँ पे होता है। ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ये बेसिक एक 1 लाइनर है, लेकिन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, वो इस तरह से आपको देगा। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ना जरूरी होता है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज इंक्लूडेड हियर। सो डू कीप योरसेल्फ वेल प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग इनटू एनी एग्जाम। नाउ question number 3. Okay, let's move to the question number 4. Actually, the Holistic Agriculture Development Program (HADP) launched in 2023 is a massive initiative in J&K. How many multifaceted projects does this program consist of? ये समझिए आप, एक करंट अफेयर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो लेकिन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें कितने मल्टीफैसेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितने प्रोजेक्ट से ये बना हुआ है। तो HADP एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो याद रखना है, इसमें जो है 29, इसको याद रखना है, इसमें 29 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कवर हो रहे हैं, ठीक है, 29। तो 29 याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसका जो फोकस है, फोकस एरिया जो है ना इसका, HADP का होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो फोकस एरिया है वो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पे आपका लाइव स्टॉक भी आता है, हॉर्टिकल्चर भी आता है, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आती है। तो इसको याद रखना है, एग्रीकल्चर तो है ही, इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर भी है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर भी है, इसके साथ साथ आपका जो लाइव स्टॉक है वो भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है, लाइव स्टॉक भी हैं, और इन सब के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर। Okay, this is what HADP is, and HADP consists of 29 projects. Now, moving to the next question, question number 5 is here. Identify the crop based on the following characteristics. आपको एक crop के characteristics दिए गए हैं, and you have to find out which crop it is. First is, it is the second most important cereal crop grown in J&K after rice. ये rice के बाद second most crop है जो कि grow किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में. It requires a hot and dry climate and 75 centimeters to 125 centimeters of rainfall.
इसको ज़रूरत पड़ती है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और रेनफॉल जो है 75 से लेके 125 सेंटीमीटर्स तक होना चाहिए। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप दैट ग्रोज वेल इन लोमी सॉइल, एक ऐसा क्रॉप जो कि लोमी सॉइल में ग्रो करता है बेहतरीन, एंड इज़ कल्टिवेटेड ऑन करेवा लैंड्स इन द वैली ऑफ कश्मीर। ओके, तो करेवा लैंड्स पे ये भी ग्रो किया जाता है वैली ऑफ कश्मीर में। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल ग्रोन आफ्टर राइस। ओके, तो ये आपको पता चल गया है कि राइस सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट है वो ये वाला क्रॉप है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड मोस्ट क्रॉप, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इसका हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है उसको चाहिए, ग्रोज वेल इन लोमी सॉइल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये बात हो रही है मेज़ की, किसकी? मेज़ की, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा ताकि कल को ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जामिनर, you will be well versed to answer. Okay, now moving to the next question. Question number 6. Match the district with its designated product under one district one product scheme. आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है जे.एंड.के में भी लॉन्च पहले ही की गई है, तो उसके अंदर आपको मैच करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट जो है इस स्कीम के अंदर कौन सा प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। दैट इज हियर what you have to find out. So first is Doda, then Anantnag, then Ramban, then Samba, and you have to find out the product. Product is trotfish, honey, olive, and mushroom. Now this is very important question, and you must remember these important districts where you can be asked questions. Okay, सबसे पहले अगर मैं अनंतनाग की बात करूँ तो अनंतनाग जो है ना, इसको दिया गया है ट्रॉट फिश, यानी कि यहाँ पे ट्रॉट फिशेज मिलती हैं। आपको पता है लिदर रिवर है वहाँ पे, है ना, तो ये जो रिवर्स होते हैं इनमें ट्रॉट फिशेज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो अनंतनाग के साथ जुड़ता है ट्रॉट फिश, तो बी के साथ 1 जुड़ेगा। अगर मैं रामबन की बात करूँ तो रामबन में तो अभी हमने देखा जीआई टैग भी मिला रामबन का, जो सुलाई हनी है ना, रामबन का जो सुलाई हनी है उसको जीआई टैग भी मिला है, तो रामबन इज एसोसिएटेड विद हनी। ठीक, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ओके, बी के साथ 1, सी के साथ 2, बी के साथ 1 यहाँ पे, सी के साथ 2 यहाँ पे है। ए डोडा, डोडा इज फॉर ओलाइव प्रोडक्ट्स, डोडा को दिया गया है जो है डोडा वो ओलाई प्रोडक्ट्स, उसको एसोसिएट किया जाता है ओलाई प्रोडक्ट्स के साथ, तो ए के साथ आपका 3 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अनंतनाग के साथ ट्रॉट फिश, रामबन के साथ हनी, सांबा के साथ आपको यहाँ पे मशरूम देखने को मिलेगा। ठीक है, सांबा को मशरूम दिया गया है अंडर दिस स्कीम टू डेवलप दिस। ओके, और इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे श्रीनगर का अगर पूछे तो श्रीनगर जो है बेकरी प्रोडक्ट्स को दिया गया है, श्रीनगर को बेकरी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बारामूला की, तो बारामूला और शुपियां याद रखेंगे, इनको दिया है एप्पल्स। ठीक है, क्योंकि एप्पल्स ज़्यादा यहाँ से ही निकलते हैं। और यहाँ से एक और पूछ सकता है, वो पूछ सकता है आपको रियासी का या कठवा का, दोनों में स्पाइसेस दिए गए हैं, तो ये भी फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, रियासी और कठवा में स्पाइसेस। ओके, बारामूला में एप्पल्स, शुपिया में एप्पल्स। ठीक है, इसी तरह से कुछ चार डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स में दिया गया है, तो वो कौन से होंगे वो हम आगे देखेंगे, उस पर भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। Now moving to the question number 7 here. Which of the following is not an important variety of Kashmiri saffron? कश्मीरी सैफरॉन की वैराइटीज में से इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि नॉट एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ, जो कि इस सैफरॉन की वैरायटी नहीं है। ओके, तो कौन सी वैरायटी ऐसी है? लच्चा, मोंगरा, गुच्ची, ठुंटो, है ना, लच्चा, मोंगरा, गुच्ची एंड ठुंटो। यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका दैट इज ठुंटो। ओके, लच्चा, मोंगरा और गुच्ची जो है ये वैराइटीज है किसकी? सैफरन की। ठुंटो जो है ना ये लोकल नेम होता है गुच्ची मशरूम का। ठीक है, ये जो है ना ठुंटो, दिस इज अ लोकल नेम ऑफ गुच्ची मशरूम, लोकल नेम ऑफ गुच्ची मशरूम, जो आपको है ना गुच्ची मशरूम जो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है गुच्ची मशरूम्स। ठीक है, तो इसका ये लोकल नेम होता है जिसको ठुंटो बोलते हैं। तो याद रखना है ये जो है ये वैराइटीज़ है किसकी? सैफरन की। सैफरन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर एसोसिएटेड रिवोल्यूशंस। ओके, क्रॉप्स और उनसे एसोसिएटेड कौन सा रिवोल्यूशन है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। मेज येलो रिवोल्यूशन, मुशिक भुर्जी इंडिजिनियस क्रॉप रिवाइवल, लेवेंडर पर्पल रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले लेवेंडर की, क्योंकि न्यूज़ में भी था, आपको पता होगा लेवेंडर के बारे में, पर्पल रिवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है ये, और ये आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट में किश्तवाड़ साइड में ज़्यादा मिलता है ना, सॉरी डोडा डिस्ट्रिक्ट में बदरवा, सॉरी किश्तवाड़ नहीं, बदरवा में आपको ये देखने को मिलता है, बदरवा साइड में। तो
लेवेंडर के साथ पर्पल ये आपको पता है, सिल्क के साथ सिल्वर रिवॉल्यूशन ये भी ठीक है, मुशिक बुर्जी ये आपको पता है, ये अनंतनाग में रिवाइव किया गया, रिवाइवल ऑफ क्रॉप ये भी ठीक है, और मेज़ के साथ आप येलो रिवॉल्यूशन जोड़ते हैं तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सारे पेयर जो हैं करेक्टली मैच्ड हैं, मेज़ के साथ येलो रिवॉल्यूशन, लेवेंडर के साथ पर्पल, सिल्क के साथ सिल्वर, मुशिक बुर्जी के साथ इंडिजिनियस क्रॉप रिवाइवल जो अभी हुआ। इसी तरह से अगर मीट के साथ पूछे तो मीट के साथ हम एसोसिएट करते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है, मीट के साथ एसोसिएट करते हैं पिंक रिवॉल्यूशन को। इसी तरह से हनी अगर पूछे, हनी के साथ एसोसिएट होता है आपका स्वीट, हनी क्योंकि क्या होती है स्वीट, तो स्वीट रिवॉल्यूशन उसको कंसिडर किया जाता है, ये आपको याद रखने हैं। या ब्लू अगर पूछे ब्लू रिवॉल्यूशन तो वो फिशेस के साथ, फिशरीज के साथ, हाँ, ब्लू रिवॉल्यूशन किसके साथ, फिशरीज के साथ। तो ये फैक्ट जो हैं ये आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर मैं आपसे एक और पूछूं, वो है हमारा जो सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स के साथ कौन सा रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड है, वेजिटेबल्स के साथ आपकी जो रिवॉल्यूशन अटैच है दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन, ओके, ब्राउन रिवॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है, ब्राउन रिवॉल्यूशन वेजिटेबल्स के साथ, ओके। Now moving to the next question, question number 10, sorry, question number 8, okay, 9 is here. Consider the following about wheat cultivation in J&K. So we covered maize, we covered saffron, now coming to the wheat. Wheat cultivation in J&K. It's a rabi crop requiring a cool and somewhat moist climate in the beginning. ये एक रॉबी क्रॉप है जिसको कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए स्टार्टिंग में. Total area under wheat cultivation is highest in the Kashmir region compared to Jammu. Okay. High yielding varieties include HD 2967, WH 1105 and PBW 550. So ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. तो अगर आपको वीट के बारे में पता है, वीट इज अ राबी क्रॉप, ये सही स्टेटमेंट होगा क्योंकि वीट जो है राबी क्रॉप ही है, एंड ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है. नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट नंबर सेकंड, टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन. अगर हम टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन की बात करेंगे, अगर आप जम्मू का देखेंगे तो जम्मू में 3,10,000 एकर्स जो हैं अंडर कल्टिवेशन है वीट के. कितने? 3,10,000. अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो सिर्फ 78,000 एकड़ जो हैं अंडर कल्टिवेशन है. तो यहाँ पे कम है ना कि ज़्यादा. तो यह इसने क्या कहा है, द टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन इज हाईएस्ट इन कश्मीर. नो, इट्स नॉट हाईएस्ट इन कश्मीर, इट इज लेस इन कश्मीर एज कम्पेयर टू जम्मू. सो 2 इज नॉट करेक्ट. व्हेन यू रिमूव द 2 you see this goes क्योंकि 2 इसमें है तो 2 इनकरेक्ट है. तो बचा क्या हमारे पास 1 and 3. तो अगर आपको पता भी नहीं है इन वैरायटीज़ के बारे में जो कि आपको अब याद रखनी पड़ेंगी तो कोई भी मसला नहीं था, आप यहाँ पे आराम से आंसर इसको कर सकते थे. ठीक है, तो आपकी ये जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, HD 2967, WH 1105, PBW एंड 550, ये आपको याद रखनी है. इसकी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं मेज़ के साथ, सॉरी वीट की. ठीक है, इसको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10. द नेशनल सैफरन मिशन लॉन्च्ड इन 2010-11 वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ विच ब्रॉडर नेशनल स्कीम. जो नेशनल सैफरन मिशन 2011 में 10-11 में लॉन्च किया गया था, वो किस स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, PM किसान सम्मान निधि. ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आप कंसिडर इसको कर सकते हैं. ये आपको याद रखना पड़ेगा. दिस वाज पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है. ठीक है, इसको याद रखना है. RKVY, कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई. ओके, इसके साथ भी क्या जुड़ता है वो एक क्वेश्चन में हम देखेंगे आगे. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि मैन क्रॉप्स हैं, उनके साथ अगर कोई भी मिशन जुड़ा हुआ है तो उस मिशन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है. द लोकल नेम गनहर refers to which agricultural product produced largely sown in the Kashmir Valley of Kashmir. गनहर, ठीक है, लोकल नेम इज गनहर. ये आपको बोल रहा है कि किस refers to which agricultural produce. तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम गनहर बोलते हैं? ठीक है, बकवीट है, किडनी बीन है, लेंटिल है, अमरनाथ. ओके, तो ये आपको बताना. ये भी एक स्टैटिक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है यहाँ पे. दिस इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, गनहर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. ये कश्मीर में किया जाता है, मतलब लगाया जाता है हर 3 या 4 बार. अगर आपने कुछ लगाया खेत में तो उसके बाद ये लगाया जाता है गनहर. क्यों लगाया जाता है गनहर? तो इसका मुझे आप रीज़न बताएंगे कमेंट्स में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द राजमाश किडनी बीन कल्टिवेटेड इन J&K. राजमा का साइंटिफिक नेम क्या है जो कि कल्टिवेट की जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में? इसका साइंटिफिक नेम. ठीक है, साइंटिफिक नेम्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं.
स्पेशली सैफरॉन का मैंने देखा, जो PYQ एनालिसिस में मैंने देखा है कि सैफरन का कई बार आया है। साइंटिफिक नेम क्या है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ये इसका भी पता होना चाहिए। दिस इज फैसिलस वुल्गारिस। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, फैसिलस वुल्गारिस। ओके, सैफरन का क्या आता है साइंटिफिक नेम, जरा मुझे कमेंट में आप बता देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. ओके, The Kashmir Valley contributes approximately what percentage to India's total apple production? कश्मीर वैली जो है कितना कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की एप्पल प्रोडक्शन में? 40 to 50, 50 to 60, 70 to 80, 90 to 95%. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है एप्पल्स आर एसोसिएटेड मोस्टली विद द कश्मीर रीजन, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है दैट इज अराउंड 70 to 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स इन द इंडिया। ठीक है, इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं है। ओके, एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, जरा कमेंट में मुझे बता देंगे। एप्पल टाउन AT करके लिखेंगे, AT उसके सामने इसका नाम, कौन सा एप्पल टाउन है। ओके, तो एप्पल टाउन कौन सा है वो मुझे बताएंगे। और एक ये आता है इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है दैट इज याद नहीं आ रहा है इस टाइम, चलिए छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कारखंदर स्कीम इन JNK involves providing financial support to revitalize languishing crafts and support artisans in which specific age group? ये भी एक स्कीम है जो कि एक एज ग्रुप के साथ जुड़ी है। कारखंदर स्कीम जो कि JNK में लॉन्च की गई है। आपको बताना है इसमें कौन सा एज ग्रुप एलिजिबल होता है फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, कौन सा एज ग्रुप यहाँ पे एलिजिबल होता है। जो भी हमारे पुराने क्राफ्ट्स वगैरह है ना, उनको रिवाइटलाइज करने के लिए, उनको दोबारा से जागरूक करने के लिए, उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इसका नाम था कारखानदार स्कीम। ठीक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को कहा गया है कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे अगर आप इन क्राफ्ट्स को रिवाइव करेंगे, वापस से लाएंगे मेन स्ट्रीम में, इन पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 18 to 35 एज ग्रुप जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये 18 to 35 जो है, दिस इज द आंसर है। ओके, नाउ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, अब ये क्वेश्चन मैंने वहां पे बोला था, एक क्वेश्चन और है जो हम यहाँ देखेंगे। अंडर द वन ODOP इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेयर डायरी प्रोडक्ट्स? कौन से ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि शेयर करते हैं डायरी प्रोडक्ट्स, यानी कि अंडर दिस स्कीम इन सबको एक ही चीज़ मिला है, दैट इज डायरी प्रोडक्ट्स। कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है? बडगाम, जम्मू, पुलवामा, राजौरी, बारामूला, शोपियन, कुलगाम, उधमपुर, किश्तवाड़, कुपवारा, पुंछ, रियासी, गांधरबल, बांडीपुरा, कठुआ, सांबा। अगर आपको याद होगा तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया कि किसको क्या मिला। वहाँ पे मैंने सांबा डिस्कस किया, सांबा को क्या मिला था? मशरूम मिला था कि नहीं? तो मतलब इसको डेयरी प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन तो वहीं पे खत्म हो जाता है। वहाँ पे मैंने आपको बोला था रियासी का भी कुछ, रियासी को क्या मिला था? स्पाइसेस, मतलब इसको भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मिला है। जो यहाँ पे ऑप्शन होगा ना, उन सबको डेयरी प्रोडक्ट्स मिला है। तो कोई एक तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला सांबा को मिला है मशरूम, तो ये तो नहीं होगा। रियासी को मिला है स्पाइसेस, ये भी तो नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ, मैंने अभी आपको बोला बारामूला और शोपियन दोनों को एक ही प्रोडक्ट मिला था, दैट वाज एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो बच्चा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो अगर आपको सिर्फ उतना भी पता है जितना मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उससे भी क्वेश्चन निकल जाता। बट अब आप याद रखेंगे बडगाम, जम्मू, पुलवामा, राजौरी, इन सब को डेयरी प्रोडक्ट्स का मिला है। ठीक है, अंडर दिस स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्कीम क्या है एक्चुअली? देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में से हमें एक प्रोडक्ट को अच्छी तरह से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस से जो भी रिलेटेड हैं, जो बंदे उसको उस पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, उनकी अच्छे से हेल्प हो जाए और वो प्रोडक्ट उसी डिस्ट्रिक्ट में मिले, ताकि क्या होगा उससे जो है एक दूसरे के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से मिलता है तो ऑब्वियसली सारे लोग वहाँ जाएंगे। इसी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कुछ मिलेगा और सारे लोग यहाँ आएंगे। सो इससे ये एक अच्छी स्कीम थी जो कि बहुत पहले लॉन्च हुई है, लेकिन अभी हम चूँकि पढ़ रहे हैं अंडर एग्रीकल्चर, तो ये याद रखना। असर्शन फिर से और रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर रिक्वायर्स अ हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। कल्टिवेशन ऑफ राइस की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको बोल रहा है कि कल्टिवेशन ऑफ राइस जो है उसमें रिक्वायर, so one here assertion is cultivation of rice in Jammu and Kashmir requires hot and moist climate. Then reason is rice is kharif crop sown in August and harvested in March and April. Okay, by the way, kharif crops हम कब sow करते हैं?
और हार्वेस्ट कब करते हैं, इसने ये पहले ही गलत दिया है, तो ये तो इसका ठीक नहीं है। कल्टिवेशन ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, है ना। जो राइस हैं जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्वियसली उसको हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होगा कल्टिवेशन के लिए, बट जो इसने रीज़न दिया है दैट इज़ फॉल्स, दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि जो हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं उसको हम सो करते हैं मार्च अप्रैल में, और वो हार्वेस्ट होता है ऑटम यानी कि अक्टूबर के टाइम पे, है ना। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इसको याद रखेंगे, ये हम सो करते हैं कब, अप्रैल और मई के टाइम पे। कश्मीर की अगर मैं बात करूँ मोस्टली अप्रैल और मई के टाइम पे, और ये अक्टूबर तक फिर हार्वेस्ट हो जाते हैं। दीज आर खरीफ क्रॉप्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ पे इसने जो दिया था वो गलत दिया था, तो इसका मतलब ए आपका ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, now moving to the next question. Question number 17. The high-tech polyhouse scheme protected cultivation aims to promote the cultivation of high-value crops. What is the maximum subsidy provided on the construction of these polyhouses? ये भी एक स्कीम है जो कि इसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। हाई टेक पॉली हाउस स्कीम जो है ये सपोर्ट करती है, 70% सब्सिडी देती हैं जो भी कंस्ट्रक्ट करेगा पॉली हाउस। ठीक है, पॉली हाउस का मतलब यहाँ पे वो जो ना ग्रीन हाउस वगैरह हम डेवलप करते हैं ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि आपको पता है जे में सीवियर विंटर्स होते हैं और सीवियर विंटर्स में ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं होता है। तो जब आप पॉली हाउस लगाते हैं तो उसमें आराम से आप जो है सब्जियां वगैरह ग्रो करा सकते हैं। दैट्स व्हाट यहाँ पे आपको याद रखना है, 70% तक का इसमें आपको सब्सिडी का सपोर्ट मिलता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे जो है ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम इंस्टॉल कराते हो तो उसमें भी आपको 50 to 60% सब्सिडी मिल सकती है। 50 to 60% सब्सिडी मिल सकती है, क्योंकि इरिगेशन भी तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ पॉली हाउस लगा के उसमें तो पानी तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो इरिगेशन भी अगर आप लगाते हैं जो ड्रिप इरिगेशन है वो वाला सिस्टम, तो उसमें भी आपको 50 to 60% जो है सब्सिडी मिलती है पॉली हाउस स्कीम। ओके, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द नेट सोन एरिया इन जे के अंडर फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के अंदर नेट सोन एरिया का कितना परसेंटेज है। मैंने आपको पहले बोला था नेट सोन एरिया जो हमारा है जे का वो 35% है। अब आपको ये बोल रहा है कि इस नेट सोन एरिया का अगर मैं इसको कंसिडर करूँ 100%, 35% हमें है विद रिगार्ड टू टोटल एरिया, बट अब आपको इसको कंसिडर करना 100% और आपको बताना इसमें से कितना है जो अंडर हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, अंडर फूड क्रॉप्स, सॉरी अंडर फूड क्रॉप्स, तो कितना है जरा बताएंगे। 42, 35, 50, 70। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑल्सो 35%, दैट्स ऑल्सो सॉरी फूड क्रॉप्स के अंदर आपका 70% होगा। ठीक है, वही सोच रहा हूँ इसको क्या होगा, 35 नहीं होगा, यहाँ पे 70 होगा। 70% आपका जो है ना नेट सोन एरिया जिसमें आपके फूड क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं अंडर इन दिस जे। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस नेट सोन एरिया का 70% जो है दैट इज अंडर फूड क्रॉप्स कल्टिवेशन। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको देखो मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, देखो मैं वो वाले लेक्चर नहीं ले रहा हूँ थियरी वाले, नहीं तो मैं शायद थोड़ा ज़्यादा डीप जाता। आपको ये पता होना चाहिए कि फूड क्रॉप किसको बोलते हैं और कैश क्रॉप किसको बोलते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है पता तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, है ना। कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं, फूड को ये तो पता ही चलता है ना कैश से ही। ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा हम ग्रो करते हैं, फूड क्रॉप्स हम अपने सस्टेनेंस पर्पज़ के लिए भी ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे राइस हमारा फूड क्रॉप होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी जो क्रॉप्स हैं वो भी इसमें बहुत सारे क्रॉप्स आएंगे, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। द variety HS507 developed by SCOST is known for its resistance to which agricultural ओके, एग्रीकल्चर में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आपको बताना ये जो वैरायटी है HS507 जो कि डेवलप किया स्कॉस्ट ने, ये किस फॉर इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस किस इशू के अकॉर्डिंग है। ठीक है, स्कैब डिजीज इन एप्पल्स, रस्ट डिजीज इन व्हीट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि HS507 किसकी वैरायटी है ना, तभी जाके आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हीट। रस्ट डिजीज जो होती है व्हीट में, उसी के रेजिस्टेंस के लिए ये HS507 डेवलप की गई है, इसको ध्यान में रखना। Question number 20. Which scheme was launched in 2015 to enhance irrigation access with the motto हर खेत को पानी। 2015 में कौन सी ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है जिसका मोटो ही है ये हर खेत में पानी। हर खेत में पानी का मतलब क्या है, वाटर टू एवरी फील्ड, है ना, वाटर टू एवरी फील्ड, सॉरी वाटर टू एवरी फील्ड, हर खेत में पानी। तो ये कौन सी स्कीम है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जे फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये इसका मोटिव था, हर खेत को पानी। इसको याद रखना, ये 2015 में लॉन्च की गई थी ये, लेकिन अभी भी चालू है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
और भी क्वेश्चंस है इसमें, लेकिन मैं यहाँ तक ही डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि रोज़ों की हालत में थोड़ा मुश्किल होता है लंबा जाना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो हैं मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए आप, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, ठीक है, जियामीज, हॉर्डियम वल्गैर, साइसर, एरिएटिनम, एल्यूसाइन, कोरासेना। तो ये आपको बताना है इनके कौन से साइंटिफिक नेम्स हैं, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मैं बता दूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS इन जेएनके स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट प्रोवाइड सपोर्ट। ओके, प्राइस सपोर्ट यहाँ पे मिलता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में। कौन कौन से यहाँ पे जो हमारे सेट ऑफ क्रॉप्स हैं उन पे अप्लाई होती है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। कौन कौन से क्रॉप्स हैं, इसमें एप्पल भी आते हैं, आपको बता दूं मैं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में एप्पल भी आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप एप्पल, वॉलनट एंड सैफरन। ठीक है, तो एप्पल जहाँ पे आया बस वही आंसर है, और कुछ भी नहीं देखना था यहाँ पे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये ज़रूर पढ़े, MIS इस पे क्वेश्चन बन सकता है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले ही प्रोक्योर किया जाता है, जो भी आपके ए ग्रेड, चाहे एप्पल्स हो, वॉलनट्स हो, सैफरन हो, जो भी आपका ए ग्रेड निकलेगा उसको प्रोक्योर किया जाता है बाय गवर्नमेंट, और उसको एक प्री डिटरमाइंड रेट पे लिया जाता है, यानी कि रेट पहले से ही डिटरमाइन की जाती है, उनको दी जाती है। ठीक है, अगर मार्केट में उस तरह की रेट उस टाइम देखने को नहीं मिलेगी तो जो भी किसान होगा वो बेच सकता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 25 हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद कर लेना ट्राई। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक ही रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट है कि आप देखते हैं लेकिन आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, लाइक और कमेंट भी किया करें, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट हो जाएगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें, और बाकी जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। और जो अगर आपको PDF ऑब्वियसली मिल जाती हैं, वो आप टेलीग्राम पे ले जाएंगे, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह की जो है MCQ बुक जो पूरे JNK की मैंने बनाई है, जहाँ से ये MCQs मैं ऑब्वियसली लेता हूँ, और वो मैंने पहले ही बनाई है, उन्हीं को डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए वो बुक अवेलेबल है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। ई बुक है ऑब्वियसली, और वो कम रेट में मिल जाएगी आपको। 160 पेजेस की वो टोटल बुक है, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, एक्सप्लेनेशंस भी आपको दी गई हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए वो भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।